मेरा आंसर 8 आ रहा है क्या? ये आ रहा है आंसर में आ रहा है, पहले जो बताया है उसको देखो, धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं सब्जेक्ट पर। All of you have noted down? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पर कभी कभी मैंने वही बता रहा था कि तुम लोगों को अभी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है। जो चीज मैं बताता हूँ ना उसको एकदम अच्छी तरीका से कर लेना, ताकि मुझे क्लियर नहीं हो कि अगर ये चीज मैं बताऊंगा तो बच्चों को समझ में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सो ग्रेजुअली okay, so now when an object is slowly moved means velocity is constant, and when an object is in equilibrium it means also acceleration is zero, so net velocity is constant, so acceleration is zero. So for this object जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इसके लिए हमारा ये फोर्स है और ये स्प्रिंग फोर्स है। So this is your spring force, this is applied force. Since it is moving slowly, so F minus kx is equal to 0. So that is F is equal to kx. So now this kx force is variable or it is constant? Variable. Variable. So first, right? So object is moving this direction. So this is your distance, that is displacement. So in the first case, work done by applied force. This is Fs cos 0 is there. From 0 to 2. तो यहां से मैं 2 मीटर तक जाता हूं, यहां से यहां, तो द सेम kx, यहां पर dx ले लेते हैं वन डायरेक्शन में, फ्रॉम 0 to 2, so this is kx square by 2, और k का वैल्यू नाउ राइटिंग k, the value of k is how much? 4 is there, so this is 4, इसको मैं 4 रख देता हूं, so 2x square, so 2x square minus 0 square, that is how much? 8 joule. Clear? And for the second one, Yes, sir. this is the spring force. So this is a spring force. So how much angle it is making with displacement? 180 degree. 180. 180 degree. Right? So this object is moving this direction, it is making distance. So work done by a spring force is there. So a spring force, this is kx dx cos phi is there. So this is minus half kx square. So this is minus 8. इसका हमारा आंसर प्लस 8 जूल, and this is what? minus 8 जूल. So whenever you have any variable force, then integration is required, right? चलो ये पूरा आप लोगों ने नोट कर लिया था कि? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. Now I am giving some practical examples जहां पर हम लोग, हाँ बताओ। सर आपने cos थीटा जो लिया है सर उसको आपने इंटीग्रेट नहीं किया? नहीं, cos थीटा तो हर पॉइंट के लिए सेम ही है।
cos थीटा तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, ओके थीटा सर। थोड़ी चेंज कर रहा है, राइट? इसको उसको इंटीग्रेट नहीं किया। Arts is in the class? Arts? Yes, sir. Okay. So now I'm taking some practical examples. Now I'm taking one practical example जहां पर वाकई में हम लोग वेरिएबल फोर्स को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए रोप इज हैंगिंग एंड यू आर होल्डिंग फ्रॉम ए फ्लोर इज देयर। मान लो सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, एक रोप हमारा हैंग कर रहा है, राइट? सो ए रोप इज हैंगिंग। So suppose you are at this point and a rope is hanging. Suppose its mass is m and length is l. And किसी ने बताया तुमको कि पूरे रोप को स्लोली इसको फ्लोट कर लिया, यानी the hanging part जो था, hanging part should be pulled completely on the floor is there. So see, as you are pulling it up, so initially you have to apply very harder force because you have to apply very harder force because more part is hanging, or as more and more part is coming on the floor, then you have to apply, that is a smaller force is there. Is it clear or not? यस सर। Right? Yes, जितना sir. पार्ट तुमने ऊपर चलता गया तो हमको हल्का लगेगा और कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। It means क्योंकि what? मास इसी कम हो जाएगा कम हो रहा है। हैंगिंग Yes, पार्ट का। hanging part का mass कम हो रहा है। Now, if anybody asks you, find the total work done, that is so that the complete part will be on the roof is there. It means what? That is every time you are applying, that is variable force, so integration is required. So suppose how one can find. So a rope is pulled. A rope is pulled slowly on a floor. So find total work done. Total work done in pulling completely on the floor is. ठीक है? तो suppose at any time, at this point x part is hanging. मान लो कि यहां पर हमारा x part hang कर रहा था, so x part is hanging at this point, right? So that is work is equal to, that is f dx is clear for all of you, right? Yes. यहाँ पर तुम्हारा x part ये हैंग करता था तो 0 to l is there. So now x part का कितना मास हमारा होगा अगर x part यहाँ पर होगा? m by l into x g dx is there. भाई l part का मास m है, l part का mass of l part is m, so therefore dx part, x part का मास कितना हो गया? m by l into dx. सर हाँ, सर अगर एक्स पार्ट हैंग कर रहा है तो सर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा सर वो भी तो एक्स ही होगा ना? x नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? हाउ मच पार्ट वाज इनिशियली ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ? इनिशियली हाउ मच पार्ट? भाई जब हमारा रूफ था वहां पर इनिशियल पार्ट कितना, हाउ मच पार्ट वाज ऑन द सरफेस इज देयर? 0. 0. और जब पूरा आ गया तो हाउ मच पार्ट विल बी ऑन दिस फ्लोर? L. So when I 0 to L. See, I have to not to see the gravity. I am not finding out work done by gravitational force. I am finding out work done by that person is there. Gravitational force is acting in the downward direction. So it means what? The direction in which we are coming in the same direction, displacement is there. इसलिए f dx अगर तुमको लिखना है तो cos 0 यहाँ पर लिख सकते हो. So you can write what? Cos 0. I am finding out work done by the applied person, not by gravitational force. Clear?
यस सर। So now m by n from 0 to n, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट पहले मेरा 0 था, अब n हो गया. So now life is very simple as there. mg by l x square by 2 0 to l mg by l l square by 2. तो ये तुम्हारा आंसर हो गया mg l by 2. So more important in these questions are there, why integration is there? Because force is what? Variable. जहां जहां force हमारा variable होगा, at that point I have to take what? Integration. Clear? Yes, sir. Yes, sir. शिवांशी, is it clear? Yes, sir. राधिका? Yes, sir. ओके, किसी को भी है तो अनम्यूट करके पूछना, क्योंकि अभी हम लोग अभी कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ, यहाँ पर देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट किया कि whenever you have constant force, then you are writing directly f dot s, and if you have variable force, then it is f dx is there. So integration at this point, more and more part is hanging. You have to apply very harder forces. जितना ऊपर आता जाएगा उतना हम लोग कम फोर्स लगाते शुरू कर देंगे. Hence it is a variable force. Now how to handle? Suppose at any point x part was there, और यहाँ पर हमारा 0 पार्ट था. x पार्ट के लिए how much force I have to apply? How much gravitational force is there? यहाँ पर x l पार्ट का मास m, तो x पार्ट का m by l into dx. तो फोर्स कितना हो गया इसमें? g हमने मल्टीप्लाई कर दिया mg, m by l x g, इसको हमने g से कर दिया, फोर्स हो गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 to l. ओके सर. ओके, सेम डे अभी थोड़ा सा ये करो, सेम डे घर पर जाकर के एम्प्टी पेज लो, फिर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. ओके, अमन, इज इट क्लियर? Yes, sir. सर ओके, हाँ बताओ. सर बट हम इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी ले रहे हैं. फोर्स तो ये एफ लेना है ग्रेविटेशनल ना. फोर्स कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पर स्लोली वर्ड लिखा हुआ है. क्लियर? यस सर. हाँ. इसका मीनिंग क्या हुआ? जितना ग्रेविटेशनल लगा रहा होगा उतना ही हम लोग लगा रहे हैं फोर्स, अभी तो नेट फोर्स 0 होगा. यस सर, इससे समझ आ गया. ओके, गुड. आई थिंक ये नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने. Yes, sir. ओके ओके, पूरा का पूरा नोट करो. सर हाँ बताओ. सर इस बार जो टेस्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें सर आपने फोर्स के आगे एरो नहीं लगाया था कि वो किस डायरेक्शन में है. नहीं, वो जो है एरो थोड़ा सा Yes, छूट sir. गया था, लेकिन हम लोग बैक साइड से लगा रहे थे. पुशिंग फोर्स था वो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर तुमने पुलिंग या पुशिंग में किसी में भी किया तो गेट फुल मार्क्स. तो वहाँ सर पर just उसमें वो मैसेज किया था उसके लिए. हाँ उसमें किया था, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि मैंने डायरेक्शन दे दिया है, लेकिन पुल होता तो आगे में ही फोर्स लगता. तो पता नहीं तुम लोगों ने क्या, किसी ने पुशिंग लगाया, किसी ने पुलिंग लगाया, किसी ने दोनों लगाया. सर मैंने तो ये सोचा कि सर उसमें लिखा था मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू मूवमेंट, तो सर मिनिमम तो पुलिंग में ही होता है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो अच्छा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहां पर एरो साइन छूट गया था. भाई नहीं आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई पुलिंग या पुशिंग में एफडीडी में क्या बच्चा कंसीडर किया है कि नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट एमजी. ठीक है, सर हाँ बताओ. तो जैसा सरफेस अभी आपने ये रोप वाले क्वेश्चन में बनाया है,
हाँ तो वैसा ही पुली वाला क्वेश्चन में वैसा ही सरफेस होता है ना, जिसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसे सस्पेंडेड होता है और एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पे रखा होता है। हाँ आएंगे आएंगे धीरे धीरे हम आएंगे, राइट। अभी तो मैंने नहीं बताया था सर, अभी। वो क्वेश्चन आप करा चुके हो, आपने टेस्ट में भी दिया था। सर वो क्वेश्चन मुझे आता था, बट उस क्वेश्चन को करते समय मुझे एक डाउट आया कि सर टेंशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पे होता है वो तो मूव करता ही है, और फ्रिक्शन से हो सकता है वो ना मूव करे। बट सर जो ऑब्जेक्ट जो सस्पेंडेड होता है, कुछ क्वेश्चंस में वो लाइक नीचे मूव कर रहा है, और जो ऐसा हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मूव करे जो पुली से नहीं अटैच नहीं नहीं, है। कभी कभी नहीं। when two objects are connected by a thread, then both objects and they must have the same velocity and same acceleration। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, नोटेड, ओके। Yes, sir. अभी तो मैं तुम लोगों को वर्ड्स मीनिंग समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सबको सारे वोकैबुलरी आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा और मैं अच्छा प्रॉब्लम मींस दैट सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन तुमको बेसिक्स जब तक नहीं आएगा तब तक तुम क्वेश्चन को हिला नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट, ये आ गया है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा उसको सॉल्व करेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर। सो एज आई टोल्ड यू, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इज जीरो इज देयर, नहीं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, दैट इज ईदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट इज एट, दैट इज इट इज इन इक्विलिब्रियम इज देयर। फॉर एग्जांपल, तो अच्छा चलो प्रॉब्लम लेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहता हूं वर्क को आज मैं फिनिश करना, ठीक है, 2-3 दिन से चल रहा है। उसके बाद ठीक है, वर्क में ही ले लेता हूं क्वेश्चन, ठीक है। ए particle of mass 2 kg is moving on a straight line having velocity v is equal to tq plus 1, where t is the time. Find the work done by the applied force in 2 seconds। यानी अगर तुम किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी को अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को अगर मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स। फोर्स, ठीक है। तो ये कहता है कि 2 सेकंड में इस वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इस व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस, निकालो तो सब कैसे निकालेंगे। सो वेलोसिटी इज गिवन टू यू, या इसको हम लोग वेलोसिटी को 2 बार कर लेते हैं, x ले लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, हैविंग पोजीशन, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हैविंग पोजीशन दिस मच, x इज इक्वल टू pq प्लस 1, एक बार डिफरेंस करेंगे वेलोसिटी आएगा, 2 बार डिफरेंस करेंगे इसको हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। जपनीक, इज इट क्लियर अभी तक जितना चीज बताया है? Yes, sir. ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा या तुम लोग सॉल्व करोगे? अमृत, Yes, sir.
सॉल्व कर रही हो? कर रही हूँ सर। ओके, सॉल्व करो तो। Anahita is there? Yes, sir. Okay. सर एक गलत आंसर बताऊं? नहीं, माने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर गलत कोई हो बात- गया और क्या? यस नहीं, सर, नहीं। सर डबल स्टार क्वेश्चन है। हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Yes, लेकिन तुम्हारे sir. एग्जाम लेकिन तुम्हारे एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा डबल स्टार, ठीक है। वो भी है। तुम ये समझो कि हम लोगों को कितना, माने जो मैंने पहले बताया था कि वी हैव टू बिकम दैट इज प्रोफेशनल सिंगर इज देयर, नहीं, एक नॉर्मल सिंगर होता है, एक प्रोफेशनल सिंगर होता है। तो अभी जैसे 13th को नीट का एग्जाम है, 16 लाख स्टूडेंट्स में से 35,000 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड, 16 लाख यानी 99,000 स्टूडेंट्स पर लाख को रिटर्न, घर पर रिटर्न होना है। और मुझे तुम लोगों को, हम लोग यहाँ पर 35,000 के लिए नहीं है, वर्स्ट केस में we have to place all of you under 1,000 is there, we are living in metro cities are there, right? तो ये कैसे होगा नहीं होगा, ये हमारा हेडेक, ये तुम्हारा एकदम हेडेक नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना तुमको एडवांस या नीट का एग्जाम तुमको ग्रिप में लेने का कोशिश करेगा, उससे मैं बड़ा पॉकेट मार बना करके तुमको भेजूं, समझ में आ रहा है? तो हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, हमारा काम ये है कि जो बच्चा वहां मिस, क्या पॉकेट मार मतलब? नहीं, किसी को पता है पिक पॉकेट? जब चोरी करना। चोरी करना होता है, किसी का पैसा कहीं पर कोई चुरा लिया, अगर किसी बंदे को अगर धरना है तो सबसे पहले उस चीज को जानना होगा। तो तुमको जितना बार, हाँ पिक पॉकेट, तो तुम्हारा जो है जब वहां पर जितना वो ग्रिप में लेना चाहेगा कि भाई ABCD में ये बच्चा कोशिश करे, तो मुझे ट्रेन करके भेजना है कि ये बच्चा तुरंत पकड़ ले कि यहाँ पर क्या चीज माइनस में जा रहा है। ओके, सो नाउ आई एम सॉल्विंग, ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व्ड? Yes, sir. Okay. Yes, sir. और जब मैं देखो, अभी मैं केवल वर्क डन निकालना सिखा रहा हूँ, राइट? अभी हमारा मेन एम है कि हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय एनी गिवन फोर्सेस देयर, राइट? इसलिए whenever I give you any question you must try, तभी तुम सब्जेक्ट सीखोगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम सीखोगे। सो नाउ x इज इक्वल टू t की प्लस 1, एक बार मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, सो dx बाय dt, सो 3t स्क्वायर प्लस 1, और एक बार और मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया 60 प्लस, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ राइट, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 60। सो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो मास हमारा हो गया 2। आई होप कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो ये सर। तुम्हारा फोर्स होगा। नाउ वर्क, force into, so force now you have to calculate, t is equal to 2 second, 12 into 2 24, और x का वैल्यू t is equal to 2 पर कितना आएगा, 9. 9 meter. 9। तो वर्क इज fs cos 0, तो फोर्स इज हाउ मच, 24 into 9, how 216 much? joules. 200. 216, 216 joules. हाँ ठीक सर, है? काटा मार दो सर, काटा मार दो, उससे नहीं चलेगा सर। ठीक है, पक्का रॉन्ग होगा? हाँ जी सर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं तो हम F इक्वल्स टू ma ले रहे हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट का है भाई, a को हमने लिख दिया तो f इक्वल टू ma, सिंस m इज कांस्टेंट, m कांस्टेंट है तो f इक्वल टू ma लिख सकते हैं, नो देयर इज नो प्रॉब्लम इज देयर, ये तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस फोर्स इज आल्सो 20, देयर इज नो प्रॉब्लम इज देयर, दिस इज आल्सो करेक्ट। इंटीग्रेशन लेना है, इस रीजन में प्रॉब्लम है। सी force I'm writing 12t, this is constant or variable? वेरिएबल, Variable. Have I integrated? No, sir. No sir. So work is equal to f dx। सर मैंने यही सर इनटू डिवाइड बाय dt होगा क्या, इनटू डिवाइड बाय dt शायद।
नहीं dt कैसे? यहां पर देखो, यहां पर लोचा है, डबल स्टार है, देखो वहां पर क्या है, हर रैंक के लिए रैंक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और जिस बंदे को जितना ट्रेन किया गया है, and that people can think up to that level question. So now that is he has given you in second, he has given you in 2 seconds. यहां पर कहीं पर टाइम नजर आ रहा है? No, sir. No. So all have you studied v is equal to dx by dt. याद करो, कभी ये सब भी पढ़ते थे, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. now life is very simple is there. f हमारा 12t हो गया और dx को मैं v dt लिख देता हूं. So this is 12t और v का वैल्यू यहां से 3t स्क्वायर dt. अब देखो इस एक्सप्रेशन में केवल टाइम ही टाइम है क्या? Yes. Yes, sir. ये में the final answer. So 36 0 to 2 t cube dt. आर्यन यहाँ पर देखो, ये मैंने क्रॉस क्यों किया है वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. मेघा, ये समझ में आ रहा है कि क्रॉस मैंने क्यों किया है? मेघा, Yes, sir. ये समझ में आ रहा है जो मैंने क्रॉस किया है? बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल बट आई Sir, 144. ओके. कितना सा आ रहा है? 144. Yes, sir. वेरी गुड. सो 144 जूल. इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? सर मैंने Yes, sir. डिफरेंशिएशन तो कर दी, मैंने dx के साथ ही कर दी. सर नहीं, वो तो है, डबल स्टार इसलिए लगा हुआ है, ठीक है. हम लोगों को ये देखना है कि यार ये सब एग्जामिनेशन कितना इजी है. एक बार मैंने बच्चों को बता रहा था, बताओ हम लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए यहाँ पर है. जो बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है, इन 1 year हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर? 1 or 2. मैंने इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ. बताओ, उसके लिए इतने बंदे कर रहे हैं और हम लोगों के पास तो इतना सीट्स है. तो हम लोग को दूसरे को नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है. स्टिल माने 50% 60% पर जबरदस्त सीट सब मिल रहा है. हाँ, थोड़ा सा मेडिकल में ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन उसको भी इस बार एनटीए सेम परसेंटेज पर लाने की कोशिश कर रहा है. तुम देखना इस बार देयर विल बी लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन मेडिकल एग्जामिनेशंस आर देयर. जो बच्चा है डायरेक्ट फॉर्मूला आ ही नहीं रहा है. फर्स्ट टाइम एनटीए इज सेटिंग द पेपर फॉर दिस मेडिकल एग्जामिनेशन. सर मैं वही Okay. कह रहा था कि इनटू और डिवाइड बाय dt कर लेते तो भी यही आती ना सर इक्वेशन तो. हाँ, वो अच्छा, वहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई. ठीक है. नोटेड? Yes. सबने नोट कर लिया? ओके. ग्रेजुअली राइट, अभी भी हम लोग को Yes, धीरे sir. धीरे धीरे, लेकिन जितना चीज मैं बता रहा हूँ. शिवम इज इन द क्लास. शिवम, शिवम मेरी आवाज आ रही है? देखो भैया, हम सबको फॉलो अप करते हैं, राइट? और यू मस्ट बी ऑलवेज बी सिंसियर. इतना इजी काम नहीं है यहाँ पर कि हम लोग नॉन आइडियल रहेंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. बी सिंसियर इज देयर. ओके. सो नाउ द फोर्स इज ऑफ 2 टाइप्स. अच्छा नहीं, इसमें कुछ और बताना है, उसके बाद मैं इस पर आऊंगा. ठीक है. सो आई टॉट यू व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, then force is variable, and then now I'm going to teach you if when
an object moves in a plane, that is यदि प्लेन में मूव कर रहा है कर पाथ पर, राइट, इधर अभी हम लोगों का क्या था कि ऑब्जेक्ट वेयर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सो थीटा वाज इधर 0 और पाई। कभी हम लोग नेगेटिव वर्क करते थे, कभी पॉजिटिव वर्क करते थे। इट वाज नॉट एनी अदर एग्रीमेंट। तो किसी प्लेन में अगर कोई पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा है, देन वी आर राइटिंग वर्क इज इक्वल टू fxi fyj dot dxi plus dyj, because we can say dr is equal to dxi dyj and f is fxi plus fyj. Then I dot I is 1, I dot j is 0. So this is fx dx plus fy dy. ठीक है, हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, और देन हम लोगों का वर्क डन आ जाएगा। Clear? For example, a particle is moving in a plane having force xi plus yj. Find yj along the path y is equal to 2x square. नाम सुना होगा, कौन सा पाथ होगा ये हमारा, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक? तो पैराबोलिक। So find the work done. Find the work done by the force to move the particle from, जब हमने x को 2 रखेंगे तो y हमारा 8 हो जाएगा, तो 2 8, यानी एक पार्टिकल तुम्हारा ऑफ कोर्स y इक्वल टू 2x स्क्वायर ऐसे मूव कर रहा है, तो कहता है कि भाई यहां से, और ये तुम्हारा हो गया 2 8, हाउ मच वर्क इज डन? किसी को क्लियर है? सो वर्क टू दैट सेल्फ आई रोट दिस इज fx dx plus fy dy. सो fx, ये तुम्हारा fx है और ये हमारा fy है, तो ये तुम्हारा हो गया x dx from 0 to 2 plus y dy. y पर कहां से कहां लिमिट होगा? 0 to 8. 0 to 8। 0 to 8, यहां पर हमारा 0 to 8 हमारा होगा। नाउ लाइफ इज वेरी सिंपल, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, और दिस इज y स्क्वायर बाय 2, 0 to 8. देन यू कैन कैलकुलेट हाफ हो गया, और 2a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर जो भी है, और दिस इज हाफ 8 स्क्वायर माइनस 0, तो 4/2, ये 2 हो गया, और 64/2 32, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया इसका 34 जूल।
So when a particle is moving on a zigzag curve in a plane, then आपको write in dr as dxi plus dri, बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सर हमें जो एक्सप्रेशन दिया था y is equals to 2xr, तो 2x स्क्वायर, सर उसका यूज तो हुआ ही नहीं कहीं। उसका सर उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ पूरे आंसर? कोई जरूरी नहीं है, जितना चीज दिया हुआ है उसके कोई यूटिलाइजेशन की हमेशा कोई जरूरत नहीं है। इसको यूटिलाइजेशन हम लोग ला भी सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा, पहले उसको नोट करो। इसका यूटिलाइजेशन मैंने हुआ है क्योंकि मैंने जब कोऑर्डिनेट लिया है, कोऑर्डिनेट 2 के बाद 8 कैसे लिया, इसी से तो लिया है मैंने। जब x तुम्हारा 2 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? ओके, तब तक मैं एक बार अटेंडेंस दे देता हूं। आयुष इज देयर? यस सर। ओके, आयुष इज देयर। आदित्य, आदित्य इज इन द क्लास। अभिलाष? यस सर। अमन? यस सर। अमृत इज ऑब्वियसली देयर। अनायका से बात हो गई। आनंद राज? यस सर। अनमोल? यस सर। अर्पिता? यस सर। अर्श? यस सर। अवंतिका? अवंतिका इज देयर? अविवेश? सॉरी, दिव्योत? यस सर। जपनी थी ओर से दे। करण सागवान? यस सर। पार्थ शर्मा? प्रेजेंट सर। राधिका इज देयर ऑब्वियसली। ऋषभ सिन्हा? प्रेजेंट सर। शगुन इज देयर? प्रेजेंट सर। शिवम? शिवांशी? यस सर। प्रेजेंट सर। श्रेया? प्रेजेंट सर। तनिष्का? प्रेजेंट सर। वंशिका? प्रेजेंट सर। वेदिका? प्रेजेंट सर। युक्ता? प्रेजेंट सर। युक्ता लेट से ज्वाइन की हो क्या? हाँ सर, मेरी अभी थोड़ी देर पहले से नेटवर्क इशू आ रहा था सर कुछ, इसलिए लेट हो गई थी सर। ओके। करण सिंह? प्रेजेंट सर। आर्यन? प्रेजेंट सर। सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो इसको मैं एप्लीकेटिव सी समटाइम्स क्या होता है, वहां पर बहुत बच्चा क्या करता है कि अरे यार ये सब दिया हुआ है, इसको मैं अप्लाई नहीं किया, पता नहीं रॉन्ग आंसर नहीं है क्या है। तो जरूरी नहीं है, बहुत बार ऐसा होगा जो तुमको वहां पर वेब को बनाने के लिए डेटा दिया हो रहा है, जरूरत ही नहीं। लेकिन ठीक है, मैं बताता हूँ इसी इंटीग्रेशन को कोई दूसरे वे से भी मैं कर सकता हूँ बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस। समटाइम्स इट्स नीडेड। यहाँ पर तो लाइफ इजी था तो हमने हमारी जरूरत पड़ी नहीं यहाँ पर, फिर भी मैं इसको एक बार यूज करता हूँ। यहाँ पर देखो कैसे इसको हम यूज करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। और साइड बाय साइड सबको नोट करते जाना है, ठीक है। अभी अपने जैसे होता है ना एक्सरसाइज करके पूरा फ्लेक्सिबल करना, तो हम लोग अभी धीरे धीरे सॉल्विंग कैपेसिटी को अभी इंप्रूव करना है।
अब यहां पर देखो कि इसी को मैं जो मैंने यहां पर लिखा हूं W इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, तो इसको मैंने लिखा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, बट सी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको 2x स्क्वायर, और यहां पर y इक्वल टू 2x स्क्वायर तुम्हारा है, तो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 4x, क्लियर है? तो dy तुम्हारा होगा 4x dx, यानी इसको मैं यहां पर 4x dx भी लिख सकता हूं, और इंटीग्रेशन अब सब x पर ही है, x इक्वल टू 0 to 2, x इक्वल टू 0 to 2, तो दिस इज x dx फ्रॉम 0 to 2, सबको x में ही ले आया मैंने, तो ये तुम्हारा हो गया 8x cube dx फ्रॉम 0 to 2 is there. All of you integrate और give me the final answer. ये पार्ट तो तुमने कैलकुलेट कर ही लिया, इसको तुम लोग कैलकुलेट करो तो, और फिर दोनों का ऐड कर दो, 34 जूल आ रहा है क्या? चलो मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है? तो इसको we can calculate. तो सपोज y कोऑर्डिनेट इज नॉट गिवन, केवल x में ही दिया हुआ है, तो यस सर आ रहा है 34, क्लियर है? यस तो ये 0 से 2, गुड, 8 और x 4/4 इज देयर, 0 से 2, तो ये 2 यहां से कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया यहां पर 2, ठीक है, और 2 का पावर 4, 8, तो कितना हो गया 32, तो 2 प्लस 32, जो कि मैथमेटिक्स में अभी भी 34 जूल है, क्लियर? ओके, ये किसने पूछा था सर इसका यूज नहीं हुआ? सर वेदिका। अच्छा वेदिका, गुड, ठीक है, तो बहुत बार हम लोग यूज नहीं भी कर सकते हैं, कभी कभी लेट मी यूज करें, ये क्लियर? लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट इज दैट व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट वर्क डन, then if force is constant we write F dot S, if force is not constant integration, then if it is moving on a curved path then this way we have integration is, सब नोट कर लो। Noted? यस सर। Okay. सर अभी लेफ्ट साइड वाला मत कीजिएगा। हाँ नोट करो, नोट करो, योर क्लास नोट्स इन द मेन टेक्स्ट बुक, राइट? देखो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में और डिफरेंस ये है कि फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता है और मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो अभी तो मैं आगे बताऊंगा जिसमें अभी तक कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब हम लोग थिंकिंग करेंगे, तो इसलिए थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट कि भाई वर्क डन हम लोग निकालते कैसे। हो गया सर। ओके,
So now conservative and non-conservative force. Non-conservative force. ठीक है? So first is conservative force. Conservative force. So in the previous article, we have done work done by forces there. So on that basis, the force has been categorized, or it has been divided into two parts. One is conservative and another is non-conservative. So now, for this conservative and non-conservative, so a force by which work done does not depend on the path, then it is known as conservative force. Known as conservative force. So that is, you are coming from this to that. Suppose for this W1, W2 and W3, we are coming from A to B. So if W1, W2, W3, then it is conservatism. यानी कहीं से अगर मान लो कि मुझे अगर इस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को लाना है, what about the path? So many different paths are there, but work done is the same. Then that force is known as what? Conservative forces. कोई भी path choose करो. Now you might be thinking, भाई ऐसा कैसे हो जाता है? For example, then I'll give you. Suppose a particle is kept at a height h is there. और एक बंदा को मैंने बोला कि भैया इसको तुम ग्राउंड पर लाओ, इस पार्टिकल को ग्राउंड पर तुम लाओ. सो वन इज कि उसने क्या किया, एक इस पार्टिकल को यहां पर छोड़ दिया, इट कम एंड इट रीच एट दैट पॉइंट, ये यहां पर रीच कर गया. और एक बार यहीं पर छोड़ दिया और ये नीचे से यहां पर आ गया. इज इट क्लियर? So I'm taking two paths are there. One is यहां पर ये तुम्हारा एक फर्स्ट पाथ हो गया और एक सेकेंड पाथ. So in both the cases it is coming under gravitational forces there. So work done in the first path. Which force is acting? mg. इस पर तुम्हारा mg फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है. mg h cos 0, यहां पर तुम्हारा mgh आ गया फर्स्ट पाथ से. नाउ इन द सेकंड पाथ, व्हेन द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट इज देयर, ठीक है. सो दिस इज mg, so this is mg cos theta and this is your mg sin theta. रिकॉल, मान लो ये तुम्हारा x हमारा ये x है, बाद में हम लोग निकाल लेंगे. सो नाउ mg cos theta is making 90 degree to the displacement is there, right? x के साथ 90 डिग्री बना रहा है. mg cos theta is not doing any work, केवल work is done by mg sin theta. तो सेकेंड में this is mg sin theta x, so this is mg sin theta और x का वैल्यू, इस ट्रायंगल से तुम sin थीटा का वैल्यू, so sin थीटा इज h by x, तो यहां से x का वैल्यू
हमारे पास x का वैल्यू आ गया h by sin थीटा, तो यहां से x का वैल्यू हमारा आ गया h by sin थीटा. So this gets cancelled. So this answer is how much? mgh. So see, work done, this one and this one is the same or different? Same. Same is there. यानी had it been, अगर मान लो कि बहुत अच्छा ऐसा भी वहां पर होता है, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, then if particle is coming from here to here, जैसे भी ये यहां से यहां था, यहां पर भी वर्क डन, इसका आंसर कितना होता है हमारा? mgh. So when it does not depend on the path is there, so work done does not depend on the path, then it is known as conservative force. That is, it simply depends, that is, it simply depends on the initial and final position. Final position ठीक है, केवल इनिशियल और फाइनल, such is known as what? Conservative forces. For example, gravitational force, then a spring force, then electrostatic force, or so many other forces are also there, are conservative forces. इसको तुम लोग नोट करो. मेघा, इज इट क्लियर जो मैंने अभी बताया है? Yes, sir. ओके, पूरा नोट करो.
देखो तुम लोग नोट कर रही हो? सर डन। Yes, sir. हो गया. ओके all of you noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So when I'll talk about conservative force, करण सांगमान नोटेड, कंप्लीट नोट कर लिया? Yes, sir. ओके तो इसको आर्टिकल आगे जाने से पहले एक में अच्छा प्रॉब्लम मींस सिंपल प्रॉब्लम लेकिन सबका रॉन्ग होने वाला प्रॉब्लम, राइट? देखता हूं कि कौन कौन सॉल्व करेगा. ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर. So a particle moves from O to A and then A to B. O to A, then A to B is there. So a particle moves from O to A and then A to B under the force F is equal to minus K yi plus xj. ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स इसका दिया हुआ A0 और ये तुम्हारा AA. Find the work done from O to B. तो टोटल वर्क डन पूछ रहा है कि कितना होगा. सर आपने F इज इक्वल टू क्या दे रखा है? थोड़ा ब्लर है. माइनस K is positive constant, K is positive constant, yi plus xj. तो पहले O to A पर आ रहा है फिर A to B पर जा रहा है, तो कहता है टोटल वर्क डन यानी दिस प्लस दिस कितना होगा.
तो यहां पर so this is W1 and this is W2 is there. तो यहां पर देखो, so of course this is fx dx, fy dy is there. बट यहां पर एक लोचा किया हुआ है, जहां पर तुम्हारा fx है वहां पर y है, so this is minus k y dx plus x dy is there. So this is 0 to a x पर ये 0 to a आ रहा है और y पर भी ये 0 to a जा रहा है. अब यहां पर देखो, तो पहले हम लोग 1 by 1 आ जाते हैं, पहले 1 by 1 आ जाता है, ठीक है, तब हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे इसको. So now I am doing for first W1. W1, you are coming from here to here, fx dx, fy dy. तो ये तुम्हारा हो गया x dx 0 to a, और y पर भी हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, तो 0 to a y dy. यहां पर देखो, when you are coming from O to A, x एक्सिस पर y का वैल्यू हमारा कितना होगा? 0. तो इसके लिए तुम्हारा y 0 है, ठीक है. तो यहां पर fx हमारा y है और यहां पर x dy है. तो यहां पर तुम्हारा y 0 है, तो dy भी 0 होगा. तो यहां पर y 0 है और यहां पर dy 0 है, तो 0 plus 0 ये हमारा 0 आ जाएगा. दैट इज W1 is how much? 0 is there. Now come for W2. So W2 यहां पर 0 to a, ठीक है, सेम स्टोरी इज देयर, y dx plus x dy. यहां पर देखो, जब हम लोग यहां से यहां आते हैं तो x हमारा कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? a, राइट. तो x को हमने a रख दिया यहां पर 0 to a, और when you are coming from here to here, then x is equal to cos. हाँ, y में रखो ना फिर. तो किसमें y में रखो? जब हम लोग यहां से यहां आ रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट है. अच्छा, हाँ, सॉरी, ठीक है. तो x कांस्टेंट है तो dx का वैल्यू 0 होगा. ये dx का वैल्यू 0 होगा, यानी यह तुम्हारा हो गया माइनस k, ठीक है, x dy फ्रॉम 0 to a इज देयर, और x भी हमारा कांस्टेंट है, यहां पर a है, तो ये होगा माइनस k a y 0 to a, so this is minus k a square. Therefore
W इक्वल टू W1 प्लस W2 और ये हो गया हमारा माइनस KA स्क्वायर, इसका आंसर। सर मेरा यही आया था। वेरी गुड, करेक्ट है तुम्हारा। क्लियर, इसको नोट कर लो और फिर आज यहीं पर नोट आने देते हैं, इसका आगे मैं फिर आगे प्रोसीड करूंगा। सर जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा Thank you, sir. Excuse me, sir. सर हाँ बताओ। सर आज के क्लास के आप वीडियो प्लीज ग्रुप में भेज देंगे। हाँ हाँ आज मैं भेज दूंगा, आज मैं भेज दूंगा। ठीक है, आज मैंने रिकॉर्ड Thank you, कर sir. लिया है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हो गया। ओके। थैंक यू सर।